Let's continue with exercise 4C. 1 to 6, question number 1 to 6 were done. I hope you remember, like the last question which we had done is x square minus 5x plus 6. So just for a quick revision, this number here in the between is should be the sum, and the number here in the end should be the product. Just a second, there is some annoyance on the screen. Okay, so this was just for the sake of revision, that this number should be the sum and this number should be the product. Now there is a small change in the further sums, like the question number 7. The question is 3x square minus 2x minus 16. Okay, so here this middle number will be the sum. Okay, and the product here will be, see there is a number here also with x square. तो x square के साथ जो number होता है, that number should be considered as along with the product. मतलब आपका जो product है वो -16 into 3 होगा. ठीक है, आपको sum के अंदर कुछ changes नहीं करना है लिखते वक्त. ठीक है, just for the sake of product लेते वक्त आपको इस 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ना, उसका प्रोडक्ट आपको कंसीडर करना है. दैट इज -48 का प्रोडक्ट आपको कंसीडर करना है. ओके, सो अब आप सोचोगे क्या दो नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट -48 है एंड जिनका सम -2 है. थिंक ऑफ टू नंबर्स. Yes, Ali. Why is no one speaking? I have unmuted yourself. Yes, Saksham. Sir, -8 into 6. Sir, the हाँ, sum correct. Sir, sum is wrong. Sum is wrong. Why sum is wrong? Yes, sir. X square minus 5x plus 6 is the question. Okay, sorry. Question number 7. Please see properly. This is question number 7. Sir, was I right? Yes. So the year it is 8 into 6. 8 6 जा 48 होता है. करेक्ट. एंड मुझे -48 चाहिए, -2 चाहिए यहाँ पे. -8 प्लस 6 क्या होता है? -2 होता है. ओके, सी मैंने यहाँ पे कोई 48 वगैरह लिखा नहीं है. ठीक है, वो नहीं लिखना है, सिर्फ वो खाली यूज करना है साइड में. ओके, टू फाइंड द फैक्टर्स. नाउ सेम थिंग, टेक कॉमन वॉट एवर पॉसिबल. Copy the sum.
Now here also you see there is 5 and minus 6. So 5 into minus 6 is minus 30. So minus 30 will be my product. What can be the factors? Think of the factors. minus 15 and 2. Correct. Yes, Krishna. Sir, minus 15 and plus 2. माइनस क्या क्या बोला? वापस थोड़ा अच्छे से बोलो. Minus 15 and plus 2. माइनस 15 एंड प्लस 2 ना. Plus 2. हाँ हाँ यस यस करेक्ट. So sorry, it was unmute by mistake. Sir, the number is minus 6, so why did you took minus 30? I told ना, if there is a number with x square first term के साथ अगर कोई नंबर होता है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है ये वाले प्रोडक्ट के टर्म से. और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 5 इंटू माइनस 6, तो माइनस 30 को आपको कंसीडर करना होता है. यहाँ पे भी हमने वही किया था, यहाँ माइनस सर 16 था. तो पहले के सम्स में भी ऐसे ही तो होता था. एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्थ सम वैसा ही था ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6. हाँ हाँ 1 to 6 जो सम्स थे ना उसमें किसी में भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर ही नहीं था फर्स्ट टर्म के साथ, इसलिए ये प्रॉब्लम ही नहीं आई. बट जब भी नंबर होता है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है. ओके. म्यूट योरसेल्फ. हियर आल्सो प्रोडक्ट -1, लेकिन ये 63 जो है ये प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. Yes, all of you think and answer me in the chat box what should be the. I don't want answer to come immediately. I want all of you to think and send me the answer in the chat box. What can be the factors? Think. ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 63 आएगा एंड जिन्हें ऐड करके सम शुड बी -18. -7 -9 जो बोल रहे हैं या -7 -6 कुछ -9 बोल रहे हैं उसका टोटल -16 होता है. हमें 18 चाहिए तो ये तो वैलिड नहीं है. यस मितांश, साद अली, हर्ष थोड़ा सा मिस्टेक 2 नहीं वो 3 है. लतीश करेक्ट. The answer will be 21 and 3.
21 3 जा 63, ठीक है, और मुझे -18 चाहिए, तो -21 + 3, (21) will become common here and x also. तो 21 कॉमन लेंगे तो 63 3 बचेगा यहाँ पे, 3x माइनस 21x कॉमन ले लिया, ये पूरा टर्म कॉमन ले लिया है, तो पूरा टर्म जब कॉमन लेते हैं तो 1 बचता है, ठीक है। यहाँ पे भी देयर इज 3x - 1, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन लेना होता है। This is 1, don't get confused, this is 1. Any doubts? Anybody, any doubts in any sum? I can explain you again, don't worry about that. Be free to ask your doubts. So how did the 3x minus 1 came? 3x - 1. Which 3x - 1 are you talking about? This one? So 20, yeah. Yes. See here, we have taken from these two terms, I have taken common. तो क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे? 63 और 21 में से 21 कॉमन आ सकता है, बिकॉज 63 क्या होता है? 21 × 3 होता है, तो ये 21 कॉमन आ गया, और x² और x में से x कॉमन आ गया, तो 21x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 3x और यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1. Sir, can I tell the next questions? What are the two numbers? Wait, let me start, then I'll give you the answer. Sir, Yes, sir, how did +1 came after 3x - 1? +1 came, see here, okay, you have understood the first bracket, how this came? Yes, sir. Okay, so this term you see, this is 3x - 1. अब इसमें से क्या कॉमन ले? कुछ भी कॉमन नहीं है. Yes, sir, there's nothing common. If there is nothing common na, then you take 1 common. Okay. Okay, if there is nothing common, then you have to take 1 common. So 1 को common लेके यहाँ पे bracket बना दिया. So after taking 1 common, the whole term will again come in the bracket. So this, yes. So then, because then only then we can have 2 brackets like this, which are same. So that bracket will come common. Okay. Hmm. Thank you, sir. Okay. So now you see that most of the sums here in the remaining, all the sums are same. Okay. So I think that it is not necessary to do all the sums. I'll do some sums randomly. Those who are able to do it fast, those who are already completed the next sum or so, they can keep solving. They can try to complete all the sums in the same time. Okay. But those who are solving with me, I'll select a few sums. Like the next I want to do is the question number 12. I'll do the question number 12 next. So here, this is the sum, okay? And for product, this 2 and -39 will get multiplied. So you will get -78 as the product. -78. अब सोचना पड़ेगा -78 को कैसे स्प्लिट करें.
Yes, can anyone tell me what should be the product for 78? 78 को प्राइम फैक्टराइज करो, अगर कुछ नहीं समझता है तो प्राइम फैक्टराइज करके देखो क्या आता है। तो क्या आ रहा है 13, और ये 2 into 3 क्या होता है 6। तो क्या 13 और 6 से हमारा काम बन सकता है? 13 minus 6 7 आ जाएगा ना। दिस इज करेक्ट। 13 and 6, मुझे -7 चाहिए, तो द बिगर नंबर शुड बी नेगेटिव एंड द स्मॉलर नंबर शुड बी पॉजिटिव। we will take common here, so 2x, नहीं 2x नहीं आ सकता कॉमन, यहाँ पे सिर्फ x आ सकता है from these two terms, so 2x minus 13 plus here we can take 3 common, 6 और 39 में से I can take 3 common, so 2x minus 13. Yes, is everyone able to understand? Let me ask randomly someone. Yes, Kalp, are you able to understand? कुछ डाउट है? No, sir. ओके। यस, दोनों ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए। ये दो ब्रैकेट्स मिलते हैं ना हमेशा, ये सेम ही होते हैं जिनको हम कॉमन लेते हैं। सेम नहीं आया है मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, ये समझ लो। जब मैंने ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया 2x minus 13, तो व्हाट इज रिमेनिंग x and plus 3, वो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाता है। चलो नेक्स्ट we'll do question number 14. See, the more number of questions you do, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड माइंड इट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो स्प्लिटिंग है, दिस इज नॉट ओनली यूजफुल इन दिस चैप्टर, ये बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स में भी काम आने वाला है। स्प्लिटिंग 9th में भी काम आएगा, 10th स्टैंडर्ड में भी इट विल बी यूजफुल इन मेनी चैप्टर्स। तो ये तो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ओके, सो द प्रोडक्ट विल बी 2 into -65, so that is -30 -130। बहुत ही सिंपल फैक्टर्स है इसके, -130। Correct. So most of you have sent me the answer. That is absolutely correct. ओके, मुझे चैट बॉक्स में भेजो, मैं जब भी पूछना होगा ना तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो आंसर मुझे चैट बॉक्स में भेजो, बिकॉज मैं आंसर क्या है, मैं तुरंत आंसर लीक नहीं करना चाहता। अदर्स ट्राई, अदर्स टेक टाइम ना। सो मेघ, कृष्णा, आई गेस हीत, हरीब, सक्षम हैज गिवन करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो क्या 13 10 130 एंड आई वांट -3, तो बड़े नंबर को नेगेटिव लेंगे।
Now you have to take just common. It's simple now. 2 तो common नहीं आ सकता, only x will come common. And here I can take 10 and 65. I can take 5 common. सेकेंड ब्रैकेट हमेशा सेम ही आता है इसके साथ, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है. Next we'll do the 17th one. 17th one. सेवनटीन वन में थोड़ा सा एक स्टेप अलग है. Now see, in this question number 17, if you observe carefully, can you take anything common among all three terms? मतलब क्या इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कुछ कॉमन लेके फ्रॉम ऑल थ्री टर्म्स? ओके, करेक्ट मेक. यस सक्षम. 4 करेक्ट. करेक्ट, आई कैन सी मोस्ट ऑफ द आंसर्स कमिंग. 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको 4 कॉमन लेना चाहिए, इसके बाद आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अभी तक किसी सम में ऐसा आया नहीं था इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन कोई भी इक्वेशन का एक कॉमन रूल होता है कि इफ इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन वी शुड सिंप्लीफाई इट फर्स्ट. तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 कॉमन लिया. ओके, मैंने 4 कॉमन लिया यहाँ पे, तो आई गॉट a स्क्वायर माइनस 3a माइनस, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 4 4 जा 54 आया. ओके, आई हैव टेकन 4 कॉमन. नाउ यू विल स्प्लिट द मिडिल टर्म फॉर दिस ब्रैकेट. ये 4 ऐसे ही रहेगा, इस 4 को कुछ मत करो. स्प्लिट द मिडिल टर्म फॉर दिस ब्रैकेट. तो दिस माइनस 54 इज योर प्रोडक्ट, क्योंकि a स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, सो माइनस 54 इज योर प्रोडक्ट, माइनस 3 इज योर सम. अब सोचो दो नंबर्स. Sir, first I'll tell the two numbers. Minus 9 into 6. Okay. And sir, I have a doubt. Yes. Sir, how to identify whether the sum we have to do like this or the previous method? This is the method. ठीक है, this is the method. इसके Yes. 1 to लेके 16 तक ऐसा कोई सम ही नहीं था जिसमें कॉमन आएगा कुछ. You can see that. Yes, sir. कोई सम ही नहीं था, बट ऐसा सम आता है जिसमें आपको कॉमन लेना पड़े तो आपको लेना ही पड़ेगा. Okay, sir. ठीक है, उसके बाद ही स्प्लिट करना है. Okay. यस कृष्णा. मेरे को आंसर बोलने का था. अच्छा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. सो यहाँ पे हो रहा है 9 6 जा 54, तो माइनस 9 प्लस 6. ये 4 को ऐसे ही रखो, कुछ मत करो. नाउ व्हाट कैन कॉमन, आई कैन टेक कॉमन ईयर, इसमें से a कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 9, और यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, तो अगेन a माइनस 9, तो a माइनस 9 a प्लस 6,
and 4 will come here. बस, this is your answer. इस 4 को ऐसे ही रखना है. This will be your answer. Now we'll start with the question number 2. Copy the question. Now see, इसमें क्या करना होता है पता है? यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है ऊपर that factorize by substituting terms. Substituting terms means आपको क्या करना है? ये जो ब्रैकेट में a plus b है, you have to write here let a plus b equals x. a plus b की जगह पे x, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये a plus b की जगह पे x स्क्वायर हो जाएगा. ये a plus b का स्क्वायर है ना, तो this will become x स्क्वायर माइनस 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा -3. समझ रहा है? 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3. अब इसको आपको सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके. ओके, सॉल्व दिस. So 12 and 3 will get multiplied. 12 3 are 36. So minus 36 के फैक्टर्स आएंगे. 9 4 are 36. Okay, minus 9 plus 4. Solve this further. मैंने फैक्टर्स बता दिए आपको. Here 3 can come common. Sorry, this will 3x will come common here. अब आपको सम कंप्लीट नहीं हुआ है. यू हैव टू रीसब्स्टिट्यूट. ये आपको रीसब्स्टिट्यूट भी करना है यहाँ पे. यू हैव टू राइट रीसब्स्टिट्यूट x इक्वल्स a प्लस b. तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना यहाँ पे, सॉरी ये जो आंसर मिला है हमें 2 ब्रैकेट्स,
इसमें in the place of x I will put a plus b. ओके, तो यहाँ पे आएगा 4 into a plus b minus 3 and 3 into a plus b plus 1. So open the brackets, 4a plus 4b minus 3, 3a plus 3b plus 1. This will be your answer, final answer after the substitution. Any doubts in this sum? Any doubts? Next, question number 2. Sub question 2, I mean. Minus 4x plus 4y minus 4. Now here they have not given you the second bracket, but ये देखो यहाँ पे से आपको अभी यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन लेना है. यू हैव टू टेक 4 कॉमन हियर. माइनस 4 कॉमन, ये माइनस 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो व्हाट विल रिमेन? x, दिस प्लस विल बिकम माइनस एंड y, और फिर ये लास्ट वाला -4 लिखो. ठीक है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ा कि मुझे ये करना है? क्योंकि मैंने ये फर्स्ट ब्रैकेट देखा कि x माइनस वाई स्क्वायर है. ओके, तो इस ब्रैकेट के हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे भी x माइनस वाई आना चाहिए. ओके, नाउ आई कैन राइट लेट x माइनस वाई इक्वल्स a ले लेता हूँ मैं, क्योंकि x and y are already used variables, so I can take a. So this equation will become 3a square minus 4a minus 4. Sir, in 3x minus y square minus the second one, there we cannot write like that x minus y and 3 minus 4 in the bracket like we write in the answer. No. अब तो फिर इसका क्या होगा फिर? And we could write -4 in the right. नहीं, फिर देखो, मतलब आपका आंसर कैसे आया? 2 ब्रैकेट आए और एक -4 आया, तो ऐसे नहीं चलता आंसर में सिर्फ ब्रैकेट्स होने चाहिए. फैक्टराइजेशन का मतलब वो है. Okay. Sir, the answer is -6 plus 2. -6 into plus 2. So 3 into -4 is -12. -12 के फैक्टर्स चाहिए, तो हम लेंगे 6 into 2 -6 plus 2. करेक्ट. तो 3a square minus 6a plus 2a minus 4. Then we take common here. So 3a will come common, a minus 2 plus 2 will come common, a minus 2. I'll continue here. Then I'll write a minus 2, and what is remaining? 3a plus 2. ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं
और फिर जो बचता है उसे आपको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 3a + 2। नाउ यू विल रीसब्स्टिट्यूट, भूलना नहीं है रीसब्स्टिट्यूट करना। रीसब्स्टिट्यूट a इक्वल्स x माइनस वाई, a की जगह पे x माइनस वाई, तो a की जगह पे x माइनस वाई लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में भी a की जगह पे x माइनस वाई लिख दिया। तो इस ब्रैकेट को ओपन कर देना अंदर। दिस इज द फाइनल आंसर। Sir, over here, I think you wrote wrong. It should be x minus y minus 2, not minus 3. अच्छा हाँ, ये दिस -2। Now we'll do one more question. See, question number 3, 4 and 5 are same. Just write one step there. Question number 3 and question number 5 में एक एक step कर लो and then leave some space. Okay, then leave some space. तो question number 3 में एक step मैं बता देता हूँ and then you can leave some space like half a page and you can solve it later. तो यहाँ पे क्या है, 2x minus y the whole square है, and here what can I take common here? ठीक है, answer me in the chat box, what can I take common here? Correct. -7 can be taken common. -7 माइनस साइन ऑटोमेटिकली कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो -7 आया तो यहाँ पे 2x minus y will remain -18. So then you will write let 2x minus y equals a. ना आपका इक्वेशन बन जाएगा a² - 7a - 18. Then further you can solve it. इतना कर लो and then leave half a page and solve it later. क्वेश्चन नंबर 5 में भी आई विल गिव यू वन हिंट कि आपको क्या कॉमन लेना है, एंड देन यू कैन कैरी ऑन योर ओन, बिकॉज इतना आप कर सकते हो, आई नो दैट। हियर यू विल टेक -6 कॉमन एंड देन लेट x plus y equals a. Then you can solve further. You have to complete this later after the lecture. Now, question number 6. 6 is important. स्टार मार्क कर दो 6 को, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। Copy this question.
what can be done here? This bracket a square minus 2a, a square minus 2a, this will be substituted. Okay, so I will write here let a square minus 2a equals x. ओके, so हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये जो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x plus 45. Okay, and for 45 you will think of the factors. Okay, so खुद सोचो factors and tell me in the chat box the answer. What can be the factors? 45, नहीं 9 और 5 नहीं चलेगा, 9 5 जा 45 होता है, लेकिन 9 + 5 18 नहीं होता. सम भी होना चाहिए और प्रोडक्ट भी होना चाहिए. करेक्ट मेघ, करेक्ट अली, करेक्ट सक्षम. करेक्ट कली. साइंस भी लिखो साथ में. 3 × 15 या 15 × 3 कुछ भी लिख सकते हो आप. ठीक है, 15 3 जा 45. अब आपको क्या चाहिए? -18 चाहिए, तो दोनों की साइन नेगेटिव होगी, तभी ही -18 आएगा. -3x -15x + 45, दोनों की साइन नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई होके यू विल गेट +45. एक कॉमन, हियर यू कैन टेक 15 कॉमन, पूरा का पूरा. तो ये माइनस साइन कॉमन लिया है यहाँ पे, इसीलिए दिस प्लस विल बिकम माइनस. 45 डिवाइड बाय 15 इज 3. Now resubstitute. X equals a square minus 2a. Okay, x equals a square minus 2a. तो ब्रैकेट्स क्या है? x -3 x -15. तो अब इसमें x के जगह पे आई विल पुट a square minus 2a, और यहाँ पे भी a square minus 2a minus 15. Now, what is special about this sum? That the sum is not over yet. If you observe this carefully, these can be further split into two terms. ये दोनों आगे और सॉल्व हो सकते हैं. इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है और इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है. तो आपको इसके आगे और सॉल्व करना है. ये दो सम्स जैसे बन गए, यू हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म्स हियर. यस वीर. Sir, is it compulsory to get the answer in the simplest form? यस यस. Okay. तो यहाँ पे -3 है, -3 को स्प्लिट करना पड़ेगा. 3 1 जा -3 + 1, और यहाँ पे पहले 1 by 1 कर लेते, पहले इसको कर लेते. एंड हियर फिर -15 को स्प्लिट करना है, सो 2 चाहिए, तो 5 3 जा -5 + 3. तो यू विल टेक ए कॉमन हियर. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन आएगा.
This will be my final answer. 4 brackets. Sir, why did we solve the sum in the answer only? Like the answer was a square minus 2a minus 3 and a square minus 2a minus 15. So why did we solve it again? Because it was further solvable. लास्ट तक फैक्टराइज करना होता है जब तक पॉसिबल है. तो सर पहले भी कर लेते ना हम लोग पहले वाले सम में. नहीं, और कहीं पे भी नहीं हो रहा था. पहले वाले सम आप चेक करो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसमें कहीं पे ऐसा इक्वेशन बनता ही नहीं है कि स्क्वायर फिर एक मिडिल टर्म फिर नंबर, ऐसा नहीं बन रहा है. जहाँ पे बनेगा वहां पे करना पड़ेगा, ऐसी बात है. यस वीर, एनी डाउट? हैंड रेज मत करो, डाउट नहीं है तो. ओके. The question number 3. I'll erase this. Question number 3 is very easy. ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना होगा. मैं एक सम कर रहा हूं यहाँ पे. ये क्वेश्चन है, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6. अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन गया. नाउ इट इज नॉर्मल इक्वेशन. नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म हियर. दैट्स इट. कुछ भी नहीं करना है सम में, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है एंड मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x 2x प्लस 1 माइनस 6. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें भी क्या करना है, ओपन द ब्रैकेट्स. ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6. और अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो. ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आता ही है. सो दिस क्वेश्चन नंबर 3 you will do it as homework. Okay, and before the next class, आज ही से कंप्लीट कर देना टेस्ट के बाद. बिफोर द नेक्स्ट क्लास, जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूंगा तो मैं रैंडमली किसी को भी बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं चेक करूंगा. जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे स्किप किए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में, वो सब आपको सॉल्व करना है. ऑल क्वेश्चंस वो सब कंप्लीट करना है. मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, and then we will start with question number 4. Sir, so approximately how many pages should we leave? Don't One leave page any for pages. every. Don't leave any pages. Why are you leaving pages? So for Do these this in sums homework only. book if you want. Do this homework book. Do this in Right, homework. sir, I did not make any homework book. Then make one. You have to make one book. ओके, तो ये मुझे चाहिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑल सम्स चाहिए मुझे, ऑल क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा. एंड विल स्टॉप हियर टुडे.